I'm Inderjeet Kaur from Government High School, Mandigaon. Today our topic is a poem. The name of the poem is Prayer for Strength. आज हम इसके textual questions करेंगे. Thinking about the poem. Question number 1. Why does the poet want God to strike at his heart? इसका आंसर है The poet prays to God to strike at his heart so that he could bear the joys and sorrows of poverty. And he also prays to God to remove hard-heartedness and fill up his heart with love and passion. Second question. दूसरा question है What does the poet want the strength for? The poet wants strength to bear his joys and sorrows, to make his love fruitful in service, never to disown poor and never to bend before rude people. तीसरा question. How can love be made meaningful in one's life? Answer. If you love someone and your love changes the life of your beloved in a fruitful way, with sweet and nice results, then you have made your love meaningful in one's life. Fourth question. इसका आंसर है क्वेश्चन है What should be our attitude towards the poor? Answer. We should never disown poor. We should always help and love them. Fifth question. What does bend by knees signify? इसका आंसर है Bend by knees in the poem signifies to resist or oppose disrespectful power and not to bend before them. Question number 6. Why does the poet want to raise his mind high above daily trifles? Answer है The poet wants to raise his mind high above daily trifles because he wants to overcome the thinking about the things of little value and think about the great things that may be beneficial for the people. Question number 7. Why does the poet ask for strength to surrender his will to God's will? Answer. The poet wants strength to surrender his will before God's will because he knew that there is no power that can resist Almighty. By surrendering his will to God's will, his heart will get purified and he will get love from God and will lead a good life. Language work. First, give me the strength never to disown the poor. Make the words beginning with prefix. This which makes a negative word. ये मैं आपको ग्रामर में सिखाऊंगी प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं. तो यहाँ पे प्रीफिक्स मीन्स थोड़ा सा दिखा दूंगी. प्रीफिक्स मीन्स मतलब है जो वर्ड से पहले कुछ लेटर्स लगा के वर्ड बनाया जाता है उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं. जो वर्ड से पहले कुछ यूज़ करते हैं वर्ड लेटर. और जो सुफिक्सेस होते हैं वो वर्ड के बाद लगते हैं. तो यहाँ पे हमें पहले लगाने हैं. यहाँ पे हमें डिस लगाकर बाकी प्रीफिक्स यूज़ करने हैं. आंसर है सम वर्ड्स विद प्रीफिक्स. यहाँ पे हमें नेगेटिव प्रीफिक्स बनाने हैं. डिस विच मेक्स ए नेगेटिव वर्ड. अगर हम डिस लगा देंगे
ग्रेस, ग्रेस हो गया अच्छा। डिसग्रेस हो गया बुरा। कंटिन्यू, कंटिन्यू हो गया लगातार। डिसकंटिन्यू हो गया रोक देना। तो इस तरह से अगर हम इन वर्ड्स के साथ डिस लगा देंगे तो ये वर्ड नेगेटिव फॉर्म में आ जाएंगे। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें हम प्रीफिक्स लगाकर नेगेटिव बना देंगे। जैसे एक वर्ड है ग्रेस, तो इसके साथ हम लगा देंगे तो ये डिसग्रेस बन गया। दूसरा वर्ड है कंटिन्यू, तो डिसकंटिन्यू। कनेक्ट, डिसकनेक्ट, कनेक्ट हो गया जोड़ देना, तो डिसकनेक्ट हो गया तोड़ देना, अलग कर देना। लाइक हो गया पसंद करना, डिसलाइक हो गया नापसंद करना। ऑनेस्ट हो गया ईमानदार, डिसऑनेस्ट बेईमान। एबल हो गया किसी काम के लिए कोई एबल होना। डिसेबल नाकाम होना। एबल हो गया काम में आना, एबल है। डिसेबल हो गया नाकाम होना। चार्ज, चार्ज हो गया किसी चीज़ को हम चार्ज करते हैं, जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं तो डिस्चार्ज निकाल देते हैं, इसको डिस्चार्ज अलग कर देते हैं। एग्री मान लेते हैं, मानते हैं, एग्री करते हैं। डिसएग्री इस बात को हम नहीं मानते हैं। रेस्पेक्ट किसी की इज्जत करना। डिसरेस्पेक्ट बेइज्जत करना। ओन मानना अपना, डिसोन अपना नहीं। तो ये थे कुछ वर्ड्स जिन्हें हमें नेगेटिव वर्ड बना दिए प्रीफिक्सेस लगा के। प्रीफिक्स लगाए तो ये नेगेटिव फॉर्म में आ गए। फाइंड द रिपीटेड वर्ड्स इन द पोइम एंड राइट देम इन योर नोटबुक। हमें वो वर्ड्स लिखने हैं जो पोइम में बार बार रिपीट हुए हैं। पोइम में वर्ड्स रिपीटेड इन द पोइम आर: नंबर 1 स्ट्राइक, नंबर 2 गिव मी, नंबर 3 स्ट्रेंथ। Note on Rabindranath Tagore. रविंद्रनाथ टैगोर 7 मई को पैदा हुए और 1861 में, और 7 अगस्त 1941 में उनकी डेथ हुई। Subsequent Gurdev was a Bengali person. ये बंगाली थे। Having wide-ranging knowledge, who reshaped his region's literature. अपने जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ के लिटरेचर को इन्होंने, म्यूज़िक को कैसे उन्होंने रीजनरेट किया, रीशेप किया, सॉरी। ही वॉज ऑथर ऑफ गीतांजलि, इन्होंने गीतांजलि भी लिखी है। ही बिकेम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। लिटरेचर के ये पहले ऐसे राइटर हैं जो नॉन यूरोपियन है जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता लिटरेचर में इन 1913 में, 1913 में। टैगोर wrote poetry as an 8 years old. जब वो 8 साल के थे तो उन्होंने पोइट्री लिखी। His novels, stories, songs, dance dramas, उनके नॉवेल्स, उनकी स्टोरीज़ जो थी, उनके गाने, सॉन्ग्स जो थे, डांस ड्रामास जो थे, और एसेज spoke to topics political and personal. His compositions were chosen by 2 nations as national anthems. 2 nations ने उनके नेशनल एंथम्स चूज़ किए हैं। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया का है जनगण मन, और बांग्लादेश का है अमर सोनार बंगला।
तो ये था हमारा प्रेयर फॉर स्ट्रेंथ के टेक्सचुअल क्वेश्चंस। कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।